master, guru, because it is the verdict, injunction of the scriptures that if you want to solve the problems of life, then you must approach a guru, a bona fide guru, a real guru, a genuine guru. So, a big question mark, how to select a bona fide spiritual master and how to know that I am to whom I am following is a bona fide authorized and what he is speaking is correct. It is perfectly aligned with what Krishna Gita 5000 years before, correct? All these questions come up in our mind. So today we are going to have very intense discussion and understanding. Through some videos we'll understand how this world now at present is extremely fortunate. We all are abundantly fortunate that even now we can have the direct association of Krishna through a via media, transparent via media of a bona fide spiritual master, and that is none other than our beloved spiritual master Srila Prabhupada ki jai. So we'll discuss how Prabhupada is most authorized self-effulgent acharya of all times. There is no doubt about that whether Prabhupada is authorized or not. Maybe he is not authorized. Question may come. Maybe he's also not authorized like any other guru. What is the proof that he is authorized? So we'll discuss all these details, taking the this particular verse of Bhagavad Gita. So request everyone to kindly chant some prayers now. Then we'll start. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare कथांचन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्य नमामि तं कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सर्वोपनिषदो गावो दुग्धगोपालनन्दनः पार्थवत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धामृतं महत् श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री कृष्ण बलराम की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमनंदे हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु, एक इको बन रहा है, प्लीज चेक कर लीजिए। So without taking much time, let us start with our first activity, which is quiz of yesterday's class. So yesterday we had again a very important discussion about the etiquettes, how we should behave. Also we discussed that how it is very dangerous, it is disastrous, a catastrophe can come in our life if we offend a brahmana. Then what to speak of offending a Vaishnava, Krishna's devotee? That is, we can never imagine also what can happen to us. So we discussed very intensely about all these subject matter, and I hope all of you could understand those topics. And please try to contemplate what I discuss here in the class. Not that just hear and forget. No. A spiritualist is called a spiritualist when he contemplates about the subject matter, about the world, about the situation of this world, about his own perplexing situation. We all are
in a perplexed situation in this material world. So a spiritualist contemplate. Krishna says in Bhagavad Gita, second chapter, we'll discuss this towards the last section of Bhagavad Gita, second chapter. Introspective sages. So devotee is introspective. If we are not introspective, if we are not contemplative, then we can never progress in spiritual life. This is the first criteria to advance in spiritual life. What is that? Late karna. Introspect about ourselves, about this world. Why to practice bhakti? Why to chant Hare Krishna Mahamantra? These things we should come contemplate. Otherwise, we'll take it for granted. We'll be complacent. You know what is complacent? ठीक है, चलता है. No, that is very dangerous. We should never be, complacent. We should never come in that zone of चलता है. No, चलता नहीं है. ये दुनिया जो है फॉरेस्ट फायर है. यहाँ पर मर जाएंगे, जल जाएंगे. यहाँ चलता नहीं है. This world is not like, a spiritual world where चलता है everything. Spiritual world is eternal. This world is horrible. So हमें contemplate करना है जो हम लोगों ने डिस्कस किया, कल जो डिस्कस किया, आज भी जो डिस्कस करेंगे, डेली जो डिस्कस करेंगे, क्लास के बाद या सोने से पहले या नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो कंटेम्पलेट करें. नोट्स बनाना हमें चाहिए. वी शुड मेक नोट ऑफ ऑल दोज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अदरवाइज हम भूल जाएंगे. वी आर प्रोन टू फॉरगेट एवरीथिंग. सो हमें नोट्स बनाना, उसको थोड़ा ग्लांस करना है. मोबाइल सुबह सुबह में जब हम उठते हैं तो मोबाइल चलाने से पहले, कुछ और विंडो खोलने से पहले नोट्स को ग्लांस करें, हमने कल क्या क्या डिस्कस किया. ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब. ओके, सो विल टेक अप द क्विज ऑफ यस्टरडे. सो कल के क्विज में अगेन 10 क्वेश्चंस वर देयर. सो हाउ डज अ ह्यूमन बीइंग परफॉर्म एक्टिविटीज वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. So we discussed that we don't perform the activity through the body. We actually perform the activity when mind is involved, not with the hands and legs. So Krishna says in Bhagavad Gita, मनो बुद्धिर, अर्जुन को बोल रहे हैं अपने मन और बुद्धि को मेरे में लगाओ और एक्टिविटी करो. So we have to employ our mind intelligence in any activity, then only we can perform that activity. So option B will be correct. Second question, in which verse Arjuna surrenders to Krishna? That is 2.7. अचिंत भेदा भेद तत्व मीन्स हमने कल बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि कृष्णा कैसे यहाँ भी है, गोलोक धाम में भी है. कृष्णा कैसे एनर्जी भी है और पर्सन भी है, एनर्जी नहीं भी है भी. सो दिस इज कॉल्ड अचिंत भेदा भेद तत्व. सो क्या है इसका मतलब? इनकंसीवेबल, वन एंड डिफरेंट फ्रॉम ऑफ द सुप्रीम पर्सन एंड हिज एनर्जीज. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट. Which are general etiquette with dealing with superiors, to follow their orders when we think that their order are right and else oppose them otherwise. No. To not counter attack them even when they attack you. Correct. To pacify them with a smiling face when they are angry at you. Correct. So option B and C will be correct. इको अगेन, आज भी आ रहा इको प्रॉब्लम. हरे कृष्णा, अभी आ रहा क्या इको? हरे कृष्णा. नहीं प्रभु, अभी ठीक है. चलो ठीक. So next question. By displeasing a Brahmana, King Nriga became a lizard. So it was very, very instructive pastime. How it is very, very dangerous to offend a Brahmana, that too unintentionally. King Nriga did not offend intentionally. It was unintentional, but still he had to become a lizard. Just imagine what will happen when we offend intentionally a Brahmana. And what to speak of offending a Vaishnava. That is very dangerous. So Sri Chaitanya Mahaprabhu said, those who worship me directly but neglect are in illusion and cause me pain. So fill in the blank, क्या आएगा? My devotees. So Chaitanya Mahaprabhu
ने अपने भक्तों को हाईएस्ट पोजीशन दिया है, हाईएस्ट पोजीशन। अगर चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को कोई ऑफेंड करता है, सो चैतन्य महाप्रभु विल बिकम लाइक फायर। एक पास टाइम आता है चैतन्य चरितामृता में, गोपाल चापल करके थे जो कि चंडी के भक्त थे, दुर्गा माँ के भक्त थे, और श्रीवास ठाकुर जो कि चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, कृष्णा के भक्त थे, उनको उन्होंने अपराध कर दिया। कैसे अपराध किया? उनको डिफेम करना चाहते थे, तो रात को जाके गोपाल चापल श्रीवास ठाकुर के घर के पीछे वो सारा टोटका कर दिया, लाल कपड़े, नारियल और सुपारी और पानी, ये सब वहां पर एक पोटली लाल कपड़े में बांध के वहां रख दिया, जस्ट टू उनको वो करने के लिए, बेइज्जती करने, इंसल्ट करने के लिए कि ये देखो अपने आप को कृष्ण भक्त बोलता है लेकिन ये चंडी का भक्त है, दुर्गा का भक्त है, कितने देखो ही इज हिपोक्रेट, डुप्लीसिट। तो ये वो गोपाल चापल श्रीवास ठाकुर के लिए ऐसा करना चाह रहे थे। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि गोपाल चापल इज ट्राइंग टू insult Srivas Thakur, so Chaitanya Mahaprabhu became like thunderbolt. He was so angry. Immediately, Gopal Chapal had to suffer with leprosy. He became a leper. उसके बॉडी में पूरा लेप्रोसी हो गया और इतना बर्न करने लग गया कि he was not able to tolerate। और गांव, लेप्रोसी इज कंटेजियस, सो गांव वालों ने भी, घर वालों ने भी भगा दिया, गंगा के किनारे चला गया और वहीं पर रहता था। तो चैतन्य महाप्रभु जाते थे डेली नहाने के लिए। चैतन्य महाप्रभु से बहुत रिक्वेस्ट किया, महाप्रभु मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, मेरे से गलती। चैतन्य महाप्रभु ने बोला, यू हैव ऑफेंडेड माय डिवोटी, यू हैव टू सफर फॉर मिलियंस ऑफ इयर्स इन द हेल। I am not going to tolerate, I am not going to rescue you, I'm not going to release you from this suffering situation. You suffer, then only you will understand, and in future also people will understand why, how it is, how dangerous it is to offend a Vaishnava, my devotees. So Chaitanya Mahaprabhu को उनके भक्त बहुत प्रिय है। कभी गलती से भी चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को हमें अपराध या कुछ बोलना, कुछ इल वर्ड्स नहीं बोलने, अपराध की तो दूर दूर की बात है। चैतन्य महाप्रभु इज वेरी वेरी अफेक्शनेट टुवर्ड्स हिज डिवोटीज। सो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी हम कॉम्प्लेसेंट ना हो, स्पेशली डीलिंग विद डिवोटीज। इट इज लाइक वॉकिंग ऑन द रेजर्स एज। You are walking on the razor's edge, little inattention, immediately bloodshed. So like that. Next, Durvasa Muni got offended because of ill behavior of Maharaj Ambarish. No. Ill behavior of Maharaj Nrega. No. Illusion. His own ill will. Correct. Last one. खुद के he had bad intention. Therefore, Ambarish Maharaj did not do anything. He himself got offended. Who were the great personalities who considered Krishna is supreme? Prahlad Maharaj, as we discussed yesterday. प्रहलाद महाराज जब हिरण्यकश्यप पूछ रहा है कि सब तुम क्या सीख के आए बेटा, तुम गुरुकुल से, गुरुकुल भेजा था प्रहलाद महाराज को, तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, मतिर्न कृष्ण परतो स्वतो वा। जो मटेरियल वर्ल्ड से अटैच्ड है, जो घर से अटैच्ड है, जो चीजों से अटैच्ड हो, कभी भी कृष्ण भक्ति नहीं कर सकता। वो भगवान कृष्ण को अपनी मति में वो यहाँ पर बैठा ही नहीं सकता। तो प्रहलाद महाराज कृष्ण का नाम ले रहे हैं, सोचो उस समय सतयुग में। दैट मीन्स कृष्ण भक्ति वाज ऑलवेज देयर। हम नहीं समझ पाते, हमें लगता है कि कृष्ण तो 5000 साल पहले अवतार लिए, नहीं, कृष्ण इज ऑलवेज देयर। बाय व्हिच pastime we can know that Vaishnavas are superior than Brahmana? Again, from this pastime of Durvasa Muni, Ambarish Maharaj. दुर्वासा मुनि ब्राह्मण थे, विप्र थे, योगी भी थे, उनको अष्ट सिद्धियों, उनके पास अष्ट सिद्धियां थी। लेकिन अम्बरीश महाराज के पास कुछ नहीं था, वो जस्ट एक सिंपल राजा थे, लेकिन भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। सो हमने देखा कल कि दुर्वासा मुनि ने अगर ऑफेंड कर दिया, इतने बड़े योगी भी ऑफेंड कर दिए अम्बरीश महाराज जो वैष्णव थे, तो उनके साथ क्या हुआ। और अगर हम लोग तो योगी भी नहीं है, हम तो वैकुंठ भी नहीं जा पाएंगे भगवान से मिलने के लिए, हमें क्षमा कर दीजिए, हमारा क्या होगा, गोपाल चापल जैसा हाल होगा हमारा भी। So that is very dangerous. Aham bhakta paradhino means Lord Krishna says Krishna is under the control of his devotee. So जब दुर्वासा मुनि वैकुंठ गए तो वहां पर भगवान ने बोला कि आपको क्या लगता है मैं इंडिपेंडेंट हूँ? नो, आई एम नॉट इंडिपेंडेंट, आई एम कंट्रोल्ड बाय माय डिवोटी। जैसा मेरे भक्त चाहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ, मैं अपने विल से कुछ नहीं करता। और आपने मेरे भक्त का अनादर किया, मेरे भक्त का अपमान किया है, आप नहीं बचेंगे। आप जाइए उसी भक्त से क्षमा मांगिए, तभी अम्बरीश महाराज अगर आपको क्षमा कर देते हैं, तभी सुदर्शन चक्र आपको छोड़े, नहीं सुदर्शन चक्र आपको मार डालेगा।
सोचो इतने बड़े योगी दुर्वासा मुनि जिनसे पूरा ब्रह्मांड डरता है, वो एक वैष्णव जो है, वैष्णव को अपराध करके उनके साथ ऐसा हो गया। वैष्णव अपराध इज सो डेंजरस। तो फिर जाते हैं अम्बरीश महाराज के पास, और अम्बरीश महाराज नेचुरली a devotee is very very compassionate and he is very humble, he is forgiving, so he forgave. So this is another quality of a devotee, that he should be forgiving. We should not keep grudge in our heart. किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया, उसको लेकर मर रहे हैं, पागल हो रहे हैं और वही सोच रहे हैं, नहीं। devotees forgiving and forget, forgive and go ahead, ये लाइन हमेशा याद रखना। forget, forgive and go ahead, आगे बढ़ो, जीवन में बहुत कुछ करना है, उसको लेकर पकड़ के बैठ जाओगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। So these are the important principles which we have to understand. Okay, so now we'll see the responses who all got 10 out of 10. So Yash Chaudhary, he got 10 out of 10. Big round of applause. Hari bol. Ankur 10 out of 10. Hari bol. So सब लोग बहुत अच्छा क्लास अटेंड कर रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं। माधव 9, कुछ मिस्टेक कर दिया माधव ने। शेखावत 7, थोड़ा अच्छे से आप नोट्स बनाइए, अच्छे से अटेंटिवली क्लास अटेंड कर सकते हैं। आई थिंक ये है हिमांशु 9, एक क्वेश्चन गलत हो गया है, तो आप थोड़ा और अच्छे से देखिए कहाँ पर गलत हुआ, कौन सा क्वेश्चन। पार्थ बंसल 7, थोड़ा पार्थ आप भी अच्छे से आप थोड़ा अटेंटिवली और नोट्स बनाइए, क्लास अटेंड करिए। तरुण खत्री 8, भव्य जैन 9, रतीन्द्र 10, वेरी नाइस रतीन्द्र, कीप इट अप। और ये कौन है, TRK 8, राधा आर्या 7, आशीष 8, आशीष थोड़ा आप भी है ना, देखिए आप कहाँ गलत हुआ। पीयूष 8, पीयूष आप भी। पूर्विका अच्छा, पूर्विका यू आर गेटिंग लेस, वेरी लेस मार्क, तो आप भी थोड़ा देखिए कहाँ पर आपका गलत हुआ। सो लाइक दिस वी सॉ दैट कितने लोग 10 लाए, 1 2 3, आज तो केवल 3 ही लोग 10 ला पाए। यू ऑल ट्राई दैट सबका 10 आ जाए, 10 में 10 आना चाहिए सबका। सो उसके लिए अटेंटिवली। हरे कृष्णा प्रभु। ओके, सो नाउ this part is over, we'll continue our discussion. हरे कृष्णा। हाँ भव्य, कुछ क्वेश्चन है आपका? जी प्रभु, वो एक्चुअली फर्स्ट क्वेश्चन में एक डाउट था मेरे को। हाँ। मतलब जैसे कहते हैं ना कि बॉडी जो है वो 5 एलिमेंट्स प्लस माइंड इंटेलिजेंस ईगो से बनती है। तो अब और बॉडी की कॉन्शियसनेस, सॉरी, बॉडी लाइव है या डेड है, या मतलब बेसिकली एक्टिव है या नॉट एक्टिव है, वो डिपेंड करता है कॉन्शियसनेस से। और करेक्ट, कॉन्शियसनेस डिटरमाइंड होती है कि उसमें सोल है या नहीं है। तो करेक्ट। बेसिकली जब सोल नहीं है बॉडी में तब भी माइंड और इंटेलिजेंस है, तो एक्टिविटीज तो हो नहीं रही है। और जब सोल आती है तभी एक्टिविटीज होती है, तो बेसिकली तो एक्टिविटीज तो सोल ही करा रही है ना। माइंड और इंटेलिजेंस का क्या रोल है? So, आप थोड़ा एडवांस लेवल पे चले गए, दैट इज नेक्स्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये तो कल के क्लास के बेसिस पे हमने क्विज किया था। तो कल की क्लास में हमने बोला था कि एक्टिविटी हम अगर जीवंत है, लिविंग है, तब हम जब एक्टिविटी कोई कर रहे हैं तो उसमें माइंड एक्चुअली इन्वॉल्व होता है। और अगर आप एब्सोल्यूट की बात करेंगे तो ऑफकोर्स सोल का तो रोल होना ही है, सोल इज द फर्स्ट प्राइमरी। सो दोनों आंसर करेक्ट, बट कल की क्लास के हिसाब से माइंड एंड इंटेलिजेंस वो ऑप्शन करेक्ट था। एनीवे, आपका भी अगर आपने सोल लिखा है तो भी करेक्ट ही है। सो चलो ठीक है, तो अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे आवर टुडेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। आई विल शेयर द स्क्रीन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन। सो नाउ लेट अस कंटिन्यू। सो ये हम लोगों ने कल देख लिया था, क्रिंगरेगा का पास टाइम कैसे लिजार्ड बन गया, क्रिटिसाइजिंग वैष्णवा, हाउ डेंजरस इट इज। सो गिव अप क्रिटिसाइजिंग वैष्णवा, टेक शेल्टर ऑफ माय नेम। रघुगणा का पास टाइम हम लोगों ने सुना था। ये रघुगण आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, रघुगण जड़ भरत। ये जड़ भरत वही जड़ भरत हैं जो कि पिछले जन्म में भरत महाराज थे, ऋषभ देव के बेटे थे। ऋषभ देव जो कि भगवान कृष्ण के अवतार हैं, और उनके बेटे 100 बेटे थे, उसमें से सबसे बड़े भरत महाराज, जिनके नाम पे पूरी धरती का नाम भारत है। तो वही भरत महाराज जो है गलती से एक हिरण से अट्रैक्ट हो गए थे, अटैच हो गए थे,
और वो अगले मरते समय उन्होंने हिरण को सोच लिया, तो हिरण बन गए अगले जन्म में। बट उनको क्योंकि इतनी भक्ति किया था, तो उनको याद था कि मैं गलती से हिरण से अटैच हो गया। तो इस जन्म में हिरण जब बने तो सेजेस की कुटिया में रहते थे, वहीं रहते थे, प्रसाद खाते थे, और फिर से अगले जन्म में वो जड़ भरत बनते हैं। और जड़ भरत बचपन से ही ही वॉज ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्णा, लेकिन ही वॉज बिहेविंग लाइक मैड मैन, क्योंकि उनको था कि अगर मैं अपना इंटेलिजेंस और ये सब शो करूंगा तो लोग फिर से, मेरे फादर, मेरे घर वाले फिर से मटेरियल एक्टिविटी में लगा देंगे। तो इसलिए वो पागल जैसे रहते थे। उनको फादर बुलाते इधर तो जाते उधर थे। वो टॉयलेट के बाद हाथ धोना होता है तो हाथ धो के टॉयलेट जाते थे और हाथ नहीं धोते थे, खाते थे हाथ नहीं धोते, एकदम पूरा पागल जैसे बिहेव करते थे, इसलिए उनका नाम पड़ा जड़ भरत। तो सब लोग उनको पागल समझते थे। तो राजा एक रहुगण भी उनको पागल समझ लिए और उनसे उनको ऑफेंड कर दिया रघुगण ने। लेकिन जब उनको रियलाइज हुआ, माय गॉड, क्योंकि जड़ भरत जब बोलना शुरू किए ना, तो लगा ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस पर्सन, हु इज दिस। तो उनको बहुत रिग्रेट हुआ और वो तुरंत उनके पैर पे पड़ गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। और वहां पर वही इंस्ट्रक्शन बोलते हैं कि मैं भगवान शिव के त्रिशूल से नहीं डरता, मैं ब्रह्मा के ब्रह्मा, यमराज और बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र, इंद्र के अस्त्र शस्त्र से नहीं डरता, मैं तो कुछ किसी से नहीं डरता, केवल मैं डरता हूं तो एक ब्राह्मण, एक वैष्णव अगर मेरे से डिस्प्लीज हो जाए, ऑफेंड हो जाए, उससे मैं डरता हूँ, मेरे से कोई वैष्णव ऑफेंड ना हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों को ध्यान रखना ये पास टाइम। ओके, सो देन वर्स नंबर 1 to 6 में ये सब हमने डिस्कस किया। एंड वर्स नंबर 7, अर्जुना सेड, Krishna, I am confused about my duty and have lost all composure because of miserly weakness. In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple and a soul surrendered unto you. Please instruct. So Prabhupada purport में लिखते हैं, the perplexities of life are like a blazing forest fire which is not set by anyone. जैसे जंगल में आग लग जाती है, अमेरिका में बहुत सारे जंगल, उसमें आग लग जाती है, 10-10 साल तक वो आग जली रहती है, बुझा नहीं पाते। एक बार जंगल में आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड भी कुछ नहीं कर सकता। और जंगल में आग कैसे लगती है? कोई आग जलाने जाता नहीं, अपने से ही लग जाती। बाय द फ्रिक्शन ऑफ द बैम्बूज चिंगारी निकलती है और आग पकड़ लेता है और पूरे जंगल में आग लग जाती है। और जंगल में अगर आग लग गई तो उसको केवल एकमात्र उपाय है बुझाने का, दैट इज एक बार घनघोर अगर बारिश हो जाए, काले बादल छा जाए आसमान में और घनघोर बारिश हो, तभी वो आग बुझ सकती है फॉरेस्ट फायर की, अदरवाइज देयर इज नो होप। और फॉरेस्ट फायर में जितने भी जंगल में जीव जंतु रह रहे हैं सब जल के भस्म हो जाते हैं। सो in the same way, this because this world is like forest fire, so हमारे जीवन में perplexities जो आती हैं वो blazing forest fire के जैसी है, कोई उसको लगाता नहीं है। ये मटेरियल वर्ल्ड का नेचर ही है, भौतिक जगत में रहेंगे तो मिजरीज आएंगी ही। सो इसको कैसे सॉल्व करें? सो देयरफॉर सो क्या क्या प्रॉब्लम है, जैसे हम देखते हैं, बर्थ एक प्रॉब्लम है, मिजरीज डिजीज प्रॉब्लम है, ओल्ड एज इज प्रॉब्लम, डेथ इज द प्रॉब्लम। सो दीज आर 4 फंडामेंटल प्रॉब्लम। अगर कोई बोले प्रभु मेरे जीवन में तो प्रॉब्लम ही नहीं है, क्या बोल रहे हो आप? इसका मतलब आप तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हो, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं है, तो मैं क्यों क्लास अटेंड करूंगा आपका? मैं तो अपना लाइफ कंटिन्यू करता हूँ, मेरा तो लाइफ बढ़िया चल रहा है। नो सर, अगर आप ये अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो इसका मतलब आप इल्यूजन में हैं। हम सब लोग ये 4 फंडामेंटल प्रॉब्लम से तो सफर कर ही रहे हैं। बर्थ इज वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। मंथ आप माँ के पेट में रहते हैं, जो कि वर्म्स हैं, वहां पे स्टूल, यूरिन, म्यूकस, ऑल काइंड्स ऑफ abominable things, and you are also living there like other worm, and worms are biting your body, tender skin, and you suffer a lot in the womb of the mother. This description comes in Srimad Bhagavatam 3rd canto, where Lord Kapila explains to his mother कि कैसे एक बच्चा माँ के पेट में जब डेवलप करता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। So development of child in the womb of the mother is nicely explained in 3rd canto, 31st chapter of Srimad Bhagavatam. All of you can find time and read that, how child suffers in the womb of the mother. So birth is very very troublesome, but we celebrate birthday. We should stop this birth process. And then disease, we all have experienced how powerful, how dangerous, how suffering situation this disease is. And old age, अभी तो हम लोग जवान हैं, बूढ़े भी होंगे, और पता नहीं बूढ़े होंगे कि भी नहीं होंगे, डेथ तुरंत आ जाए। So these are 4 problems which are inevitable. We have to go through this. So these problems, how to solve? And apart from all these 4 problems, we have created our own problem unnecessarily. ये 4 प्रॉब्लम तो आएंगे ही आएंगे, इसके अलावा हमने बहुत सारे अनलिमिटेड प्रॉब्लम अपने लाइफ में क्रिएट कर लिए हैं।
एंजाइटी, कंपटीशन, फ्रस्ट्रेशन, मटेरियलिज्म के कारण ये सारी चीजें हमने क्रिएट कर रखे। सो वी आवर सिचुएशन इज दैट हमें अभी पता नहीं है कि क्या करें। सब लोग ट्राई कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पूरा साइंटिफिक रिसर्च इसी के पीछे है कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करें, कैसे बर्थ डेथ को सॉल्व। सबसे बड़ा चैलेंज जो है प्रॉब्लम है डेथ एंड ओल्ड एज। तो इसको लेकर बहुत रिसर्च चल रहे हैं, साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे हैं कि हम जो है एजिंग को रोकना है, हमेशा जवान रहें, यंग रहें। पूरा रिसर्च चल रहा है, आप पढ़िए, देखिए डिस्कवरी में कैसे चल रहा है। और डिजीज को सॉल्व करने का, डेथ को सॉल्व करने का पूरा चल रहा है। डिजीज को सॉल्व करने कितने कितने हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, लेकिन डिजीज भी आते जा रही हैं। सो हम लोग वी ऑल आर हेल्पलेस हाउ टू सॉल्व these problems, but an intelligent person understand, a spiritualist understand that actually all the problems are because of this body. So if we can stop the birth and death, then we can be freed from permanent problems of life. Permanently will be free from all these problems. So then scriptures, Krishna says in 4th chapter, we have to surrender to Guru. Just like Arjuna surrendered to Guru Krishna, then only we'll be freed from this problematic situation. So Krishna बोलते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें बोनाफाइड गुरु को अप्रोच करना है, एंड वी मस्ट हियर ट्रूथ, जो कि एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर है। सो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर की क्या क्वालिटीज होती हैं, प्रभुपाद परपोर्ट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, हम थोड़ा देखेंगे। एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर वही है जो कि कृष्णा का रिप्रेजेंटेटिव है, वन हु इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा, who represents Krishna, who is a devotee of Krishna, who is a devotee of Krishna, who speaks what Krishna speaks. He will not speak anything from his own mouth, from his own factory of mind. No, अपने मन से कुछ नहीं बोलता, वो वही बोलेगा जो कृष्णा ने भगवद गीता में बोला, अदरवाइज वो गुरु नहीं है। तो पहला क्वालिफिकेशन ये है कि वो कृष्णा का डिवोटी होना चाहिए, कृष्णा का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, जो कृष्णा ने भगवद गीता में इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको एज इट इज फॉलो करे वो अपने लाइफ में। आचार्य तभी उसको बोलते हैं जब वो जीवन में आचार में लाए फिर प्रचार करे, वही आचार्य है। खुद फॉलो नहीं कर रहे हैं और दूसरों को बोल रहे हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, और दूसरे के हार्ट में कोई चेंज भी नहीं आएगा। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स जगलरी आप यूज कर लीजिए, खुद प्रैक्टिस नहीं करते हैं, खुद आप कृष्णा के इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप किसी को बोलेंगे, डिसाइपल को बोलेंगे, कम्युनिटी को बोलेंगे, उनमें हार्ट में कोई चेंज नहीं है। सो हमें कृष्णा के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, ये गुरु के लक्षण है। पहला क्वालिफिकेशन है गुरु मस्ट बी devotee of Krishna, pure devotee of Krishna, and he should follow 100% all the instructions of Bhagavad Gita जो कृष्णा ने बोला, तभी वो बोनाफाइड गुरु। तो हम जब गुरु को अप्रोच कर रहे हैं, किसी को भी देख रहे हैं इस दुनिया में जो भी गुरु बन रहा है, अपने आप को गुरु क्लेम करता है, क्या वो भगवद गीता के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है एज इट इज? क्या वो कृष्णा का डिवोटी है? क्या वो जब कुछ बोलता है तो शास्त्रिक रेफरेंस देता है, शास्त्र से कोट करता, श्लोक बोलता है? ये सारी चीजें हमें देखनी है। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे, प्रभुपाद परपोर्ट में बता रहे हैं कि यहाँ पर आप देखिए येलो कलर में जो हाईलाइटेड है, प्रभुपाद लिख रहे हैं, ही कुड अंडरस्टैंड दैट हिज सो कॉल्ड नॉलेज वाज यूजलेस इन ड्राइविंग अवे हिज प्रॉब्लम्स which were driving up his whole existence, and it was impossible for him to solve such perplexities without the help of spiritual master like Lord Krishna. Academic knowledge, scholarship, high position, etc. are all useless in solving the problems of life. Help can only be given by spiritual master like Krishna. Therefore conclusion is that spiritual master who is 100% Krishna conscious is the bona fide spiritual master, for he can solve the problems of life. तो यहाँ पर जो पहला इंस्ट्रक्शन निकल के आ रहा है वो क्या, 100% वो कृष्णा कॉन्शियस होना चाहिए, तभी वो बोना फाइड स्पिरिचुअल मास्टर कहा जाएगा। और दूसरा क्वालिफिकेशन क्या है, ये स्काई येलो कलर में, स्काई ब्लू कलर में आप देख सकते हैं, इट डज नॉट मैटर वेदर पर्सन इज विप्रा, learned scholar in Vedic wisdom, or is born in a lower family, or is in the renounced order of life. If he is a master in the science of Krishna, he is the perfect and bona fide spiritual master.
So without being a master in the science of Krishna consciousness, no one is a bona fide spiritual master. श्लोक यहाँ लिखा हुआ है चैतन्य चरितामृत में आता है कि बा विप्र कृपा न्यासी शूद्र के ने नाय यही कृष्ण तत्व वेती से ही गुरु है। फिर अगला इंस्ट्रक्शन क्या आता है गुरु के लिए, सदकर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु न सस्यात् वैष्णव सपचो गुरु। A scholarly brahmana expert in all subject of Vedic knowledge is unfit to become a spiritual master without being a Vaishnava। तो एक व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो वैष्णव भी है। ब्राह्मण मतलब वो मंत्र तंत्र उसको पता है, सारे स्क्रिप्चर्स पढ़ता है, सारे वैदिक नॉलेज उसके पास, लेकिन कृष्णा का डिवोटी नहीं है। तो इसीलिए ब्राह्मण और वैष्णव में अंतर होता है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं वो ब्राह्मण तो है लेकिन वैष्णव नहीं है और एक्सपर्ट नहीं है साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस में, बट अ पर्सन, तो वो कभी गुरु नहीं हो सकता। बट अ पर्सन born in a family of lower caste can become a spiritual master if he is a Vaishnav। एक डॉग ईटर फैमिली में अगर कोई व्यक्ति जन्म लिया लेकिन वो कृष्णा का डिवोटी है तो गुरु बन सकता है। सो इस तरीके से गुरु के ये कुछ क्वालिटीज क्वालिफिकेशन प्रभुपाद ने साइट किए हैं और अगले वर्ष में भी प्रभुपाद जो हैं वो बताते हैं। ओके, सो नाउ विल सी अ वीडियो। अच्छा, तो अभी हम लोग मैं जैसे इस्कॉन में हम लोग फॉलो करते हैं प्रभुपाद इज स्पिरिचुअल मास्टर, प्रभुपाद हैज ऑल दीज क्वालिटीज, प्रभुपाद इज 100% परफेक्ट। लेकिन क्वेश्चन आता है जो प्रभुपाद बोल रहे हैं क्या 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 गारंटी है कि कृष्णा ने यही बोला था, करेक्ट है ना? क्योंकि प्रभुपाद ट्रांसलेट कर रहे हैं, प्रभुपाद ही इंग्लिश लिख रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि वो संस्कृत जो है उसका जो ट्रांसलेशन हो वही है जो कृष्णा बोलना चाह रहे हैं, करेक्ट? तो एग्जाम्पल आता है कि क्या गारंटी है कि यसी वर्मा कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स जो यसी वर्मा लिखे हैं, जो हम आईटी थ्योरी में यूज करते हैं पढ़ते हैं, क्या गारंटी है कि वो बुक ऑथराइज्ड है? वो यसी वर्मा ने ही लिखा है। हम सब लोग जब 11th में आते हैं तो सब सजेस्ट करते हैं आईआईटी तैयारी के लिए फिजिक्स की बुक में आपको एससी वर्मा की बुक पढ़नी है, आपका फाउंडेशन क्लियर होगा, फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे और तभी आप आई रोडो और बड़े बड़े रेसनिक हॉलीडेज के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप अच्छे से करिए। सो क्या गारंटी जो आप किताब खरीदने जा रहे हैं मार्केट में, वो कवर तो एससी वर्मा का है, क्या गारंटी अंदर कंटेंट भी एससी वर्मा ने ही लिखा है, करेक्ट? क्या गारंटी है बताइए, कैसे समझेंगे आप? सो वेरी सिंपल, आप उसको अगर सॉल्व करके उसको पढ़ के, अगर आप जो कॉलेज में टेस्ट होता है, कोचिंग में टेस्ट होता है, उसको प्रीवियस ईयर्स पेपर को सॉल्व कर पा रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट्स को यूज करके आप फिजिक्स क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब जो आप बुक खरीदे वो क्या है, वो परफेक्ट बुक, वो करेक्ट है। सो किसी भी चीज का जो है प्रमाण क्या है कि वो सही है, उसका रिजल्ट। जैसे आपको आईटी कोचिंग के लिए जाना है या गेट की कोचिंग के लिए जाना है, इतनी सारी कोचिंग है, तो आप कैसे सेलेक्ट करेंगे हु इज द बेस्ट कोचिंग? या तो आप हर एक कोचिंग में एक एक दिन जाइए, आप पढ़िए समझिए, तो ये तो आपका टाइम ही वेस्ट हो जाएगा। सो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे इज बेस्ट कोचिंग, किसमें मुझे जाना चाहिए? अगेन रिजल्ट। आप क्या देखेंगे? परिणाम देखेंगे, रिजल्ट, फल, कि भाई इस कोचिंग में कितने बच्चे आईआईटी में सेलेक्ट हुए, अच्छा इतने बच्चे, सो मैं इस कॉलेज इस कोचिंग में जाऊंगा। सो फलेन परिचयते ये बोलते हैं। सो फल आपका परिचय देता है। आप इंजीनियरिंग तो कर रहे हैं लेकिन आपको कुछ आता ही नहीं है, आप कंप्यूटर साइंस हैं, आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती, तो इसका मतलब है कि आपने 4 साल केवल सुट्टा फूका है, मजे किए हैं, आपने कंप्यूटर साइंस नहीं किया है। तो फल आपका परिचय देता है, रिजल्ट। उसी तरीके से व्हाट इज द प्रूफ दैट प्रभुपाद इज ऑथराइज्ड ऑथेंटिक बोनाफाइड? रिजल्ट। प्रभुपाद ने जो दुनिया में करा है, जो दिया है, अनपैरेलल। तो प्रभुपाद इज सेल्फ इफल्जेंट। प्रभुपाद इज सेल्फ इफल्जेंट मींस जिस तरीके से सूरज को कोई प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती कि सूरज एग्जिस्ट करता है कि नहीं, उसी तरीके से प्रभुपाद को कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है कि प्रभुपाद ऑथराइज्ड हैं, ऑथेंटिक बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो कृष्णा से अलाइंड है कि नहीं, कोई डाउट ही नहीं है, बिकॉज प्रभुपाद इज सेल्फ इफल्जेंट आचार्य। प्रभुपाद ने अपने दम पे जाके अकेले अमेरिका में कृष्णा कॉन्सेप्ट प्रचार किया। हम एक वीडियो के थ्रू देखेंगे, आप ये वीडियो देख के आई एम श्योर योर हार्ट विल यू नो develop a feeling for Prabhupada, how Prabhupada did so much, how much pain he took. So this video will see, and you see how Prabhupada is alone single-handedly
he is doing everything and established this big SCON worldwide Hare Krishna movement. So I'm going to share this video. थोड़ा सा बड़ा है, आप लोग थोड़ा सा पेशेंटली इस वीडियो को देखना, 20 मिनट का है, बट वेरी वेरी हार्ट टचिंग वीडियो. In 1967, there was a heart attack. I was hospitalized. I thought that now I shall die. Let me go back to Vrindavan. After 2 consecutive heart attacks on the ship Jaladuta, this was the 3rd time Srila Prabhupada got a heart attack. This time it was very, very severe. Left part of the body got paralyzed. And this time Srila Prabhupada decides, let me go back to Vrindavan. Then there was repeated letters, come back, come back. So I came back. I'm Joe McConnell, another traffic report in minutes on KSFO KYAFM. And with Magic 61 traffic, I'm Joe McConnell. Thanks, for cars are backed up for miles on the South 5 freeway right now. Swami A.C. Bhaktivedanta, head of the International Society for Krishna Consciousness, arrived from India. There is a long history that I came here with a determination to start a temple in New York. I am not very much hopeful that I wrote one poetry that Krishna, why you have brought me in this country, what can I do? I shall convince them how they will understand the philosophy. So I wrote that poetry. I do not know what for I have come here, why Krishna has brought me here. So, but because you have brought me here, must be there is some purpose. All right, you make me dance as you like. Srila Prabhupada writes in his Jaladuta diary, I have no devotion, nor do I have any knowledge, but I have strong faith in the holy name of Lord Shri Krishna.
This was the time when youngsters in America had rebelled against the authorities. There were a lot of protests in the country, and they were heavily into drugs, intoxication, gambling, meat eating. Srila Prabhupada wondered, will they ever be able to understand the message which he has so painstakingly carried from east to west? He pleaded and begged Lord Krishna to inspire them to take up the teachings of Bhagavad Gita. The Swami was a friend of my husband's father, Mr. Agarwal, in Agra, India. And he asked me to sponsor the Swami, and that's what I did. And that's why he came to our house in the middle of the night one night. He stayed with us for a month in Butler. The Swami came with so few possessions. He came with the clothes he had on his back. He had a typewriter, and he had his books. And he had a bag of cereal. The Swami brought a pan with him in which he cooked his food, and in fact cooked our lunch too. Imagine coming to a country on the other side of the world with so little, and yet he came with so much in himself. When he left, he was just oceanic. Oceanic. He just seemed to take in the entire universe when he left, and he laughed a lot.